छठी कक्षा के विद्यार्थियों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है केरल का राजकुमार। केरल का राजकुमार। केरल साउथ इंडिया में आता है और हमारे भारत देश का सबसे नीचे, भारत देश के सबसे नीचे आपको यहां पर केरला दिखाई देगा। केरला यहां दिखाई देगा। तो भारत के सबसे नीचे भूभाग में आपको केरल दिखाई देगा। तो इसी केरल की एक घटना का वर्णन यहां किया गया है। केरल राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा राजवर्मा। नाम सुनो। एक राजा रहा करता था जिसका नाम था राजा राजवर्मा और उसका एक बेटा था। बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम था रविवर्मा। रविवर्मन। राजा का नाम राजवर्मन, बेटे का नाम रविवर्मन। ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ರಾಜವರ್ಮ, ಮಗನ ಹೆಸರು ರವಿವರ್ಮ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಠಿನ ಹೆಸರು ಕೇರಳ ಕಾ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಆ ರಾಜಕುಮಾರ ರವಿವರ್ಮನ್ ಎಂತ ನಾಲಾಯಕಿದ್ದ. ಆ ರವಿವರ್ಮನ್ನಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳಾಯಿತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರವಿವರ್ಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತೊಂದರೆ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಮ್ಮ ನಾಲಾಯಕ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ, ಅಯೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಬಹಳ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹೇಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮೃತ್ಯುದಿಂದ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅವರ ಮಗ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಸಾಗಿ, ರಾಜ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲದಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಅಯೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು, ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಜನರು ಈ ದೇಶವನ್ನು, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಈ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅವ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾನೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ
ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಹಣದ ದೇವರು. ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೊಕ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ರವಿವರ್ಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. देखो, राजा रविवर्मन के राज्य केरल में प्रजा सुखी और संपन्न थी. जब तक राजा राजवर्मन थे प्रजा बहुत सुखी थी. तो राजा राजवर्मन के राज्य केरल में प्रजा सुखी और संपन्न थी. राज्य में धन धान्य और खुशहाली थी. दयालु राजा राजवर्मन अपनी संतान के समान प्रजा की देखभाल करते थे. प्रजा परिश्रमी थी, ईमानदार और राजा का आदर करती थी. राजवर्मन के राज्य में व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने आते थे. गरम मसाले और इमारती लकड़ी के बदले व्यापारी सोना चांदी से भरे थैले दे जाते थे. राज्य की आमदनी दिनों दिन बढ़ रही थी. देखो बच्चों, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूंगा कि केरल में क्या मिलता है. तो केरल में मिलता है गरम मसाला. गरम मसाला यानी क्या, ನಾವು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಅದು दालचीनी, लवंग, इलायची, हवेज, ये सब. तो दालचीनी, लवंग, इलायची, ये सभी चीज़ें केरल में बहुत मिलती है. तो वहाँ लोग गरम मसाले खरीदने के लिए केरल आते थे. और इसके साथ में इमारती लकड़ी यानी क्या, कटगी. लकड़ी का मतलब है कटगी. और इमारती लकड़ी यानी सागवान लकड़ी, शीशम लकड़ी, और फिर बाद में चंदन की लकड़ी. ये लकड़ी भी वहाँ बहुत ज़्यादा पैमाने पर मिलती है केरल में. और इसके बदले उस समय करेंसी नहीं था. ये बहुत पहले की बात है बच्चों, बहुत पुरानी बात है. तब करेंसी नहीं था, पैसा नोट नहीं थे. तब लोग क्या करते थे, सोना, हीरे, मोती, चांदी ये देकर चीजें खरीदते थे. यानी 10 सोने के सिक्के, उसके बदले में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो दालचीनी, लवंग, इलायची खरीदते थे. और लकड़ी भी 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल लकड़ियां खरीदते थे. तो ऐसा विनिमय होता था. और राज्य में सब प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें लकड़ी के बदले सोना मिलता था, गरम मसाले के बदले सोना, चांदी, हीरे, मोती मिलते थे. तो लोग बहुत प्रसिद्ध थे, लोग बहुत खुश थे. और राज्य की प्रसिद्धि बढ़ रही थी. राज्य आगे बढ़ता जा रहा था. तो देखिए क्या होता है. हाँ, राजा का एक ही बेटा था रविवर्मन. सेवकों के लाड़ प्यार ने उसे स्वार्थी और अहंकारी बना दिया था. राजा ने पुत्र रविवर्मन को जिम्मेदार बनाने की भरकस कोशिश की, किंतु उसे तो राजकाज से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था. राजवर्मन को केवल एक ही चिंता दिन रात सताती थी कि उनके बाद उनके राज्य और प्रजा का क्या होगा. समय व्यतीत हो रहा था, किंतु रविवर्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं था. इधर प्रजा बहुत खुश थी. राजवर्मन के जमाने में प्रजा बहुत खुश थी. लेकिन हुआ क्या, यहां राजवर्मन की उम्र दिनों दिन बढ़ती जा रही थी. और इधर बेटा रविवर्मन अपने मित्रों के साथ, अयोग्य मित्रों के साथ कभी
उसने राज्य के विषय में सोचा ही नहीं, केवल अयोग्य मित्रों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, यही था। राजा की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तब राजा ने क्या किया? राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना दुखी था कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रजा का क्या होगा, यही वो सोच रहे थे। तो हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनो। इसी चिंता ने राजा को बीमार कर दिया। राजा बीमार पड़ गया। अगर हम बार बार एक ही विषय पर सोचेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो ऐसा ही राजा के साथ हुआ। इसी चिंता में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद राजा राजवर्मन चल बसे। अपने पिता की मृत्यु हो गई। तंदेव तीरकोंडरू, राजवर्मन तीरकोंडरू वो मर गए। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। क्यों बीमारी आई उन्हें? क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे कि मेरा बेटा आगे देश को कैसा चलाएगा। और इसी में उनकी मृत्यु भी हो गई। अब परिणाम ये हुआ कि अब सब कुछ चित्र बदल गया। अब राजकुमार रविवर्मन राजा बन गया। और राजकुमार रविवर्मन जब राजा बना तब क्या क्या घटना हुई, जरा ध्यान से सुनो। राजकुमार रविवर्मन सिंहासन पर बैठा, योग्य मंत्रियों को राज दरबार से निकालकर स्वार्थी मित्रों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया। अब राजकुमार रविवर्मन अनुभवहीन और मूर्ख मित्रों की सलाह पर राज्य का संचालन करता। धीरे धीरे राजकोष खाली होने पर रविवर्मन ने प्रजा पर नए नए कर यानी टैक्स लगा दिए। अरबपतियों, अरब व्यापारियों से अग्रिम धन ले लिया, यानी पहले ही उनसे पैसा निकाल लिया। व्यापारियों को अग्रिम धन के बदले सामान न मिलने पर उन्होंने राज्य को त्यागने का निश्चय किया। प्रजा का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। देखो, यहाँ जैसे ही रविवर्मन राजा बना, उसने तुरंत योग्य मंत्रियों को हटाकर अपने अयोग्य मित्रों को मंत्री बना दिया। जब अयोग्य मित्रों को मंत्री बना दिया और उनकी सलाह पर काम करने लगा तो धीरे धीरे राज्य का खजाना यानी पैसा खत्म हो गया। राज्य का खजाना खाली हो गया। हीरे मोती जवाहरात जो पहले थे धीरे धीरे सब समाप्त हो गए। अरब से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, पहले ही उनसे पैसा ले लिया जाता था, यानी हीरे मोती सोना चांदी ले लिया जाता था और बाद में उनको सामान भी नहीं मिलता था। ये सोचकर वो इस राज्य को छोड़कर वहां से जाने लगे। परिणाम क्या हुआ सुनो। अरब व्यापारी अमावस्या की रात अपने जहाज लेकर राज्य छोड़कर जाने लगे। पहरेदारों ने जब इसकी सूचना राजा को दी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अब रविवर्मन ने मुसीबत से निकलने के लिए पिता के योग्य मंत्रियों को बुलवा भेजा। वे अपने अपमान से दुखी थे, इसीलिए नहीं आए। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे अपने पिता की बातें याद आई, उसकी आंखें खुल गई। रविवर्मन ने मित्रों को पद से हटा दिया। रविवर्मन उदास और परेशान था। उसने धन की देवी लक्ष्मी की प्रतिष्ठा में बनाए गए मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का विचार किया। तो परिणाम क्या हुआ देखो। यहां पर सारे व्यापारी, सारे बिजनेसमैन केरल राज्य छोड़कर जाने लगे। सभी अमावस्या की रात को वहां से जाने का उन्होंने निश्चय किया। अमावस्या की रात को ही क्यों चुना उन्होंने? अमावास्येನೇ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರು ನಮಗೆ ಗುರ್ತ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಆದರೂ ಗುಪ್ತಚರ ಇದರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರಾಜ ರವಿವರ್ಮನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ ರವಿವರ್ಮನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪವನ್ನು ಅರಿವು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಮಂತ್ರಿಯರನ್ನು ನಿಯುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಅವಮಾನದಿಂದ ಅವರು ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ರಾಜ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರವಿವರ್ಮನ್, ನಾನು ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದರಿದ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಬರಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. स्नान करके देवी के दर्शन के विचार से जैसे ही रविवर्मन समुद्र की ओर बढ़ा, उसे लगा जैसे सीढ़ियों में कोई बैठा है. उसने पूछा, कौन है वहाँ? उत्तर न मिलने पर उसने अपना प्रश्न दोहराया. उत्तर मिला, मैं यह राज्य छोड़कर जा रही हूँ. वो कौन है स्त्री जो राजा से नजरें मिलाकर बात कर रही है? वो कोई मामूली स्त्री नहीं है, बल्कि वो साक्षात लक्ष्मी है. और लक्ष्मी राजा से नजरें मिलाकर बातें कर रही है और राजा से कहती है कि मैं ये राज्य छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि ये राज्य का राजा ठीक नहीं है. सुनो. तो यहां पर उसने फिर पूछा, पर क्यों? आवाज आई, अब मुझे अब यह नगर अच्छा नहीं लगता. इस राज्य का राजा मूर्ख है. जब उसके मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूं? रविवर्मन समझ गया कि वे राजलक्ष्मी हैं. राजा ने कहा, राजा अनुभवहीन ना समझ है. उसने स्वयं को ही गाली देते हुए कहा कि मैं अनुभवहीन हूं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ना समझ हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता. लेकिन लक्ष्मी तो रूठ गई थी, लक्ष्मी नाराज हो गई थी. अब क्या हुआ? लक्ष्मी को रोकना है. अगर लक्ष्मी चली गई तो वापस लौटकर नहीं आएगी. इसीलिए हम रोज लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी वहीं बनी रहे. देखो क्या होता है. राजा के प्रार्थना करने पर भी राजलक्ष्मी ने जब जाने का ही निश्चय कर लिया तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए. मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ. अमूल्य मोतियों की मेरी इस माला को आप मेरे लौट आने तक अपने पास रखिए. आप मेरी प्रतीक्षा करेंगी ना? देवी ने कहा, अवश्य. रविवर्मन देवी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए स्नान करने पानी में उतर गया. धीरे धीरे समुद्र की लहरें ऊंची होती गई. रविवर्मन पूरी तरह पानी के अंदर जा चुका था. रविवर्मन को इस राज्य में लक्ष्मी को रोकना था, लक्ष्मी को जाने से रोकना था. तो उन्होंने क्या किया? अपने गले की माला निकालकर उन्होंने क्या किया? लक्ष्मी को दे दी और लक्ष्मी से कहा कि आप इस माला को अपने गले में पहन लीजिए. मैं स्नान करके जब तक आ नहीं जाता तब तक आप इस माला को पहनकर यहां बैठ जाइए, यानी मेरी माला की रक्षा कीजिए. तब लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, आप आने तक मैं इस माला को धारण करके यहीं बैठूंगी. मैं माला यहीं हाथ में पकड़कर बैठूंगी. तब रविवर्मन नहाने के लिए समुद्र में चला गया. परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अमावस्या के दिन लहरें तेज बढ़ती गई. राजा पानी में डूबता गया. राजा पूरी तरीके से पानी में डूब गया, अंदर चला गया, समुद्र के भीतर चला गया. और इधर लक्ष्मी राजा का इंतजार करते बैठी है.
राजा कब आएगा, राजा कब आएगा, राजा कब आएगा, और मैं कब उसकी ये माला उसे लौटा दूंगी। वो सोच रही है, लेकिन इधर राजा तो आया ही नहीं। तो क्या हुआ देखो, रवि वर्मन जब नहीं आया तो दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या हुआ, अगले दिन अरब व्यापारियों के जहाज समुद्र के किनारे आने लगे। अरब व्यापारियों ने बताया कि जितने भी व्यापारी वहां आए उन सब का यही कहना था कि वे स्वयं यही यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि समुद्र की तेज लहरें उन्हें यहाँ ले आई है। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राजा के वस्त्र मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हैं और राजा समुद्र के तट पर अचेत पड़ा हुआ है। राजा की मणियों की माला मंदिर की देवी लक्ष्मी के गले में पड़ी हुई है। देखो दूसरे दिन का दृश्य, जब सब लोग ये देश को, इस राज्य को छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन रात भर में कोई भी नहीं जा पाया क्योंकि समुद्र की लहरें अपोजिट डायरेक्शन में थी, यानी उनके खिलाफ थी, विरुद्ध थी, और वो सारी लहरें उन्हें बहाकर वापस केरल राज्य की तरफ ले गई। और जब वो आए अरब के सभी व्यापारी, तो उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे राजा बेहोश पड़ा है, क्योंकि रात भर वो पानी में डूबता रहा और डूबने से राजा की मृत्यु हो गई। राजा अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है, मरा है या नहीं मरा पता नहीं, लेकिन अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है। और राजा के वस्त्र वहीं पड़े हुए हैं मंदिर के पास, और राजा की माला कहाँ है, लक्ष्मी के गले में पड़ी हुई है। तब राजा ने लक्ष्मी को अपने राज्य से जाने से तो रोक लिया, लेकिन इसके लिए उसने अपने प्राणों की बलि देना चाहिए। राजा सुधर गया था, लोगों को पता चल गया कि राजा ने क्या किया। लोग फिर उस राज्य को छोड़कर जाने की बात नहीं करने लगे और धीरे धीरे फिर से राज्य उसी शान और शौकत में लौट आया जो पहले थी। अब राज्य फिर से आबाद हो गया और केरल का राजकुमार सुधर गया। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें मूर्ख मित्र नहीं बनाने चाहिए। अगर हम मूर्ख मित्र बनाएंगे तो हम भी कुछ दिनों में दरिद्र हो जाएंगे। तो मूर्ख मित्रों से हमें दूर रहना है। धन्यवाद।